वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्गा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मालया पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा सुप्रसन्ना पाहि अलमेल्मङ्गा समुद्रतनया पाहि अलमेल्मङ्गा सुरपूजिता पाहि अलमेल्मङ्गा सरोजहस्ता देवी अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा सौभाग्यदायिनी अलमेल्मङ्गा सरसिजनयना अलमेल्मङ्गा सर्वज्ञशक्तिवे अलमेल्मङ्गा सर्वं सहा पाहि अलमेल्मङ्गा महालक्ष्म्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமஹ என்று இதோ பத்மாவதி தாயாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை திருச்சானூரிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் செவித்துக் கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, இதோ தாயாரை தரிசித்துக் கொண்டு இன்றைய வர்ணனையை தொடங்குகிறேன். மகாலட்சுமியின் அம்சமாய் அவதரித்தாள் ஸ்ரீ துளசி தேவி அல்லவா? ஆயுர்வேதத்தில் திவ்ய ஔஷதி என்று குறிப்பிடப்படும் துளசி தெய்வாமிக்கது என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததே. அப்படி துளசியை துளசி, திருத்துழா என்றும் தமிழிலும் சுலபா, சுரசா, விருந்தா, வைஷ்ணவி, அமிர்தா, ஷியாமா, ரமா அஸ்மத் பரமகுருப்யோ நமஹ, அஸ்மத் பரமேஷ்டகுருப்யோ நமஹ, அஸ்மத் சர்வகுருப்யோ நமஹ, ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ, ஸ்ரீ பராங்குசதாசாய நமஹ, ஸ்ரீமத் வியாமணமுனயே நமஹ, ஸ்ரீ புண்டரீகாட்சாய நமஹ, ஸ்ரீமன்னாதமுனயே நமஹ, ஸ்ரீமதே சடகோபாய நமஹ, ஸ்ரீமதே விஸ்வக்சனாய நமஹ, ஸ்ரீயை நமஹ, ஸ்ரீதராஜ நமஹ. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய ஸ்ரீசேஷ பக்ஷீஸ்வர பத்மகர்ப சேனேசமுக்ஷான் பிரதிபோதயந்தாம் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகம சாஸ்திரமாத்யம் விஷ்ணும் சதாஹம் சரணம் பிரபத்யே. దర్భేష్వాసైనః దర్భాన్ ధారయమాణః పవిత్రః ప్రాణానాయమ్యా. ఒక్కసారి ముక్కు మూసుకోండి. ఓం భోః ఓం భవః వకం సవః వం వహః వంచనః వంతవః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుః వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ మా భూత్యోతిరథామృతం బ్రహ్మ భూద్భవస్య వరోం. చెప్పండి. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవిందాయ నమః. మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోః దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీరంగస్య ఉత్తరప్రదేశే కృష్ణా కావేరీ మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే తిరుసుకగ్రామే శ్రీ పద్మావతి నాయిక్యాః సన్నిధౌ భగవత్ భాగవత
ఆచార్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యవహారిక చాంద్రమాణేన ప్రభవాది సృష్టి సంవత్సరాణం మధ్యే శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే హేమంత ఋతౌ పుష్యమాసే కృష్ణపక్షే తదయాయాం ఆశ్లేష నక్షత్ర యుక్త వాసరః వాసరస్తు జయవాసరే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ సకల విశేషేణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీమాన్ గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య నక్షత్రోద్భవస్య. మీ గోత్రం పేరు నామధేయం నక్షత్రం చెప్పుకోండి ఒక్కసారి. చెప్పండి. మమ కుటుంబస్య క్షేమః స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సర్వమంగళ కార్యాణి అనుకూల సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల శోక శత్రు నివారణ సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల భూత ప్రేత పిశాచి బాధ నివృత్తి సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల విషహరణ నివారణ సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల సంపత్కర సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల విద్యా ప్రాప్తి ద్వారా అఖండ ఐశ్వర్య స్థిరనివాస సిద్ధ్యర్థం శ్రీ పద్మావతి నాయిక్యాః సన్నిధౌ ప్రాతఃకాల శ్రీపాంచరాత్ర ఆగమోక్త ప్రకారేణ విష్ణు పద్మ కపింజల సంహితోక్త ప్రకారేణ ప్రాతఃకాల ఆరాధన అనంతరం శ్రీ పద్మావతి నాయక్యాః కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య ముఖేన కరిష్యే. ప్రథమతః నిర్విఘ్న పరిసమాప్తి అవాప్తి సిద్ధ్యర్థం శ్రీ విశ్వక్సేన ఆరాధనం కరిష్యే. తతః స్థలశుద్ధ్యర్థం దేహశుద్ధ్యర్థం ఆత్మశుద్ధ్యర్థం ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం మానసికశుద్ధ్యర్థం శుద్ధ్యర్థం శుద్ధే పుణ్యాః వచనం కరిష్యే. తదంగత్వేన కన్యాదాన మహోత్సవం ఆచార్య ముఖేన కరిష్యే. ఇత సంకల్ప్య అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. மகாலட்சுமியை நமோ நமஹ. பக்தர்களே, பாஞ்சராத்திராகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு கலச பூஜை, சேனநாயக்கரான விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. சேவிப்போம். பார்க்கடலில் அமிர்தம் கடைந்த காலத்தில் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் அம்சமான ஸ்ரீ தன்வந்திரி பகவான் அமிர்த கலசத்துடன் வெளிப்பட்டார். அப்போது ஏற்பட்ட ஆனந்த மிகுதியால் விஷ்ணுவுக்கு ஆனந்த கண்ணீர் வெளிப்பட்டு அதில் சில துளிகள் அமிர்த கலசத்தினுள் விழுந்ததாம். அதுவே மரகத பச்சை நிறத்தில் ஸ்ரீ துளசி தேவியாக ஆவிர்பவித்தது என்றும், அமிர்தத்தை பங்கிட்டு கொள்ள தேவாசுரர்கள் சண்டையிடும் போது அந்த அமிர்த கலசத்திலிருந்து மேலும் சில துளிகள் பூமியில் அவையே பூமி எங்கும் துளசி செடிகளாக உற்பத்தியாயினும் என்றும் ஒரு சரித்தம் பத்ம புராணத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது. பக்தர்களே, நாமும் கூட துளசி தேவியை மகாலட்சுமி ஸ்வரூபமாக நினைத்து கொண்டு தினமும் நம் வீட்டில் அந்த துளசி செடியை பூஜை செய்து வந்தால் நமக்கு சௌபாகியம் கிட்டும் என்பது ஐதீகம். நாமும் கூட சாக்ஷாத் மகாலட்சுமி பத்மாவதி தாயாரை இதோ சேவித்து கொண்டுள்ளோம். தங்க சிம்மாசனத்திலே கம்பீரமாக ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை கரம் பிடிப்பதற்காக வீற்று கொண்டிருக்கும் அந்த தாயாரை இரு கரம் கூப்பி கண் குளிர சேவிப்போம். அப்போது அந்த துளசி தேவி பகவானிடம் பெற்ற வரத்தின்படியே வீட்டில் துளசி மாடம் வைத்து அதற்கு பூஜை செய்பவர்களுக்கும், துளசி பறித்து அதன் திவ்ய தலங்களால் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை அர்ச்சிப்பவர்களுக்கும், ஏன் இருவரும் சகல சௌபாக்கியங்களையும் தந்து நிறைவில் விஷ்ணு லோக்கத்திலும் இடம் தந்தருளுகிறாராம். நம்மை பெற்றெடுத்து வளர்த்து பேணிக்காத்த நம் தாயாரை மதித்து காப்பாற்றி அவள் அருளாசிகளை பெறுவதும், தந்தையை பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் உபசரித்து
ஆசி பெறுவதும், துளசி செடி வைத்து அதற்கும் பூஜித்து சேவைகள் புரிவதும் இம்மூன்றும் மனிதருக்கு உத்தம கதியை தரவல்ல சேவைகள் என மகான்கள் கூறுகிறார்கள். சூரிய மண்டலம், திருப்பார்கடல், வைகுண்டம், விஷ்ணுவின் திவ்ய தேசங்கள், சாலிகிராமம், நைமச்சாரண்யம், பதிவிருத்தைகள் உள்ள இடம், வேதாந்தம், பக்தர்களின் ஹிருதயம், துளசி மாடம் போன்ற இடங்களில் பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு நித்தியவாசம் புரிகிறாராம். எனவே இவை யாவுமே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தேவியும் வாசம் புரியும் இடங்களே அல்லவா? அதனால் நாமும் கூட லக்ஷ்மியை போற்ற வேண்டும். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நெல்லி மரத்தில் வாசம் செய்பவள். அந்த நெல்லி அருநெல்லி மரமல்ல, சாதாரண பெருநெல்லி மரமே. நெல்லிக்கனியை ஆமலக்கம் என்றும் கூறுவார்கள். அப்படி நெல்லியை அரைத்து தேய்த்து குளித்தால் வெளியுடம்பின் அழுக்குகளையும், உங்கள் உள்ளுக்கு உண்டால் நம் உள்ளுடம்பில் உள்ள அழுக்குகளையும் நீங்குமாம். அதனாலேயே நெல்லிக்கு அப்பெயர் வந்ததும் என்றும் கூறுகிறார்கள். பக்தர்களே, அப்பழுக்கற்ற தூய தலைவன் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு. அதனால் அவனுக்கே அமலன் என்ற பெயரும் உண்டு. அதனால்தான் அமலனாதி பிரான் என்றும் பாடுகிறார் ஆழ்வார் ஒருவர். அதனால் அமலனின் மனைவியான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அமலா அல்லது அமலை என்றும் பெயர் பெறுகிறாள். பெருமாளையும் பெரும்பாட்டியையும் சேவித்து உடல் அழுக்கு, உள்ளத்து அழுக்கு, ஆன்மா அழுக்குகள் நீக்கிய அமலர்கள் அல்லவா ஆழ்வார்கள். அதனால் அழுக்கும் நீங்கும். குற்றங்களையும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமிக்கு அதே தன்மை உள்ள நெல்லிமரம் பிரியமான வஸ்துவாக இருப்பதில் ஆச்சரியம் இல்லை. ஏன், திருக்கோயிலின் உச்சியில் விமானத்தில் உள்ள கலசத்திற்கு கீழே பீட்டம் போல் நெல்லிக்கனி வடிவில் வட்டமாக ஒரு கல்லை அமைப்பார்கள். இதற்கும் ஆமலக்கம் என்றுதான் பெயர். பக்தர்களே, அது மட்டுமல்ல, தாத்ரி பழம் என்பது நெல்லிதானே. தாத்ரி என்றால் என்ன? ஸ்ரீ பூமாதேவியை குறிக்குமாம். ஆம், பூமாதேவியும் ஸ்ரீதேவியின் அம்சம்தானே. ஹரிபல்லம் என்றாலும் நெல்லிக்கனிதான் இது விஷ்ணுவை குறிக்கும் பெயராகும். எனவே விஷ்ணு பக்தர்கள் நெல்லி மரத்தை மகாலட்சுமியாகவே எண்ணி வழிபடுவார்கள். அது போலவே எல்லோரும் வழிபடலாம். நெல்லி மரத்தின் நிழலில் நின்று தானம் செய்வதும் அன்னம் அளிப்பதும் மிகுந்த சிறப்புடையது. பக்தர்களே, நெல்லி இலைகளால் ஸ்ரீ விஷ்ணுவையும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியும் அர்ச்சிக்கலாம். அதிகமான அவ்வை பிராட்டிக்கு நெடுநாள் வாழ வேண்டி நெல்லிக்கனி தந்ததும், ஆயுர்வேத சித்த மருத்துவ முறைகளில் நெல்லி சிறந்த மருந்து பொருளாகவும் பயன்படுத்துவதும் நெல்லியின் சிறப்புகளை மென்மேலும் உயர்த்துவதாகவும் உள்ளதாம். அப்படிப்பட்ட அந்த துளசி தேவியை இதோ நாம் மகாலட்சுமி ஸ்வரூபத்தில் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். திருச்சானூரிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிப்போம். பத்மாவதி தாயாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். நமஸ்தேஸ்து மகாமாயே ஸ்ரீபீட்டே சுரபூஜிதே சங்க சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று சேவிப்போம். மலர்ந்த தாமரை மலரின் மீது எழுந்தருளி ஒளிர்கின்ற மேனி எழில் உடையவளாகவும், தம் திரு கரங்களில் தாமரை மலர்களை ஏந்தியவளாகவும் பார்க்கடலில் இருந்து ஸ்ரீ எனப்படும் லக்ஷ்மி தேவி தோன்றினாள். மகரிஷிகள் அந்த ஸ்ரீலக்ஷ்மி தேவியை ஸ்ரீ சூக்தம் என்னும் வேத மந்திரங்களால் துதி செய்து மகிழ்வித்தனர். விஸ்வாவசு முதலான கந்தர்வ கணங்கள் ஸ்ரீயை துதித்து கீதம் இசைத்தனர். கிருதாசி முதலான அப்சரஸ்கள் தேவ மாதர்கள் நடனமாடி அவளை மகிழ்வித்தனர். கங்கை முதலான புண்ணிய நதி தேவதைகள் எல்லாம் கூடியிருந்தனர். அஷ்டதி கஜங்கள் என்னும் எந்திசை ஆணைகளும் தங்க பாத்திரத்தில் புண்ணிய தீர்த்தங்களை எடுத்து சர்வலோக மகேஸ்வரியான ஸ்ரீ லக்ஷ்மிக்கு மங்கள புனித நீராட்டி கொண்டிருந்தார். அப்படிப்பட்ட தாயாரை இதோ சேவிப்போம். जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने कृत्वा क्रतु गुम्रनो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्याम् देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमाद्येषु वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेन शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः
ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संहृतगं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति सदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्ययनेः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनेः सुदुघाहि घृतश्च्युतः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीते सह मा पुनातो सोमः स्वस्त्या वरुणः समेच्य यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवः सुवः तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः चम्बाचं प्रपद्ये मनोयज प्रपद्ये सामप्राणं प्रपद्ये चक्षुश्रोत्रं प्रपद्ये भागोजसहोजो मयि प्राणापनो यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाते तृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् कयाः नश्चित्र आभो बधूते सदा वृदः सखा कया सचेष्टया वृता कस्त्वाः सत्यो मदानां मग्नेष्टो मत्सदन्दसः दृष्ट्वा च दारुजवसो अभेषो नः सखे नामभिताजऋतॄणां शतं भावास्योतिभिः कया त्वन्न ओत्याभिप्रमन्दस वृषन् कया स्तोत्रभ्य आभारा इन्द्रो विश्वस्य राजते षण्णो अस्त्वद्विपदे षञ्चतुष्पदे षण्णो मित्रश्चं वरुणश्चन्नो भवत्वर्यमा षण्ण इन्द्रो बृहस्पतिश्चन्नो विष्णोरुक्रमः षण्णो वातः पवताग्निषण्णस्तपतु सूर्यः षण्णक्रनिक्रदत्पर्जन्यो अभिवर्षतो अहानिशम्भवन्तु न शग्नरात्र्यः प्रतिधीयताम् षण्ण इन्द्राग्ने भवतामवोभिषण्ण इन्द्र वरुणारातहव्या षण्ण इन्द्राभूषणा वाजसातौ समिन्द्र सोमा सुपिताय संयोः
षण्णो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रावन्तु नः शोना पृथिविनो भवान् रक्षरनिवेशने यच्छानः सर्मा सप्रथाः आपोहिष्ठामयो भुवस्ताना ऊर्जदधातनः महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतिरेव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वधा आपो जनयधा जनः शान्तिरन्तरिक्षशान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः धृतदृग्नः मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समेक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समेक्षे मित्रस्य चक्षुषा समेक्षामहे धृतदृग्मा योक्ते संवृशे देव्या संयोक्ते संवृशे देव्यासं नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वक्षिषे अन्याग्रस्ते अस्मत्तापन्दहेतयः पावको अस्मभ्यग्र शिवो भव नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे नमस्ते भगवन्नास्तु यथा स्वसमेहसे यतो यतः समेहसे ततो न अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रिया तस्मै सन्तु तस्मान् वेष्ट्यं च वयं विष्मः तच्चक्षुर्देवहेदं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतज्ञ शृणुयाम शरदः शतम् यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णाहस्ताभ्याम् आददे नारीरसे युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रस्य बृहतो वे पश्चिताः यहोत्रा दधेवयुना विदेकयन्महे देवस्य सवितुः परिष्टुतिः देवेद्या वा पृथिवी मखस्य वा मध्यशिरोराध्यासं देवयजन पृथिव्याः
मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे देव्यो वम्रयो भूतस्य प्रथमज मखस्य वोद्यशिरोराध्यास देवयजन पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे यत्यग्रा आसेर्मखस्य तेद्यशिरो राध्यासं देवयजन पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे इन्द्रस्योजस्थमखस्य वोद्यशिरो राध्यासं देवयजन पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे त्रैतो ब्रह्मणस्पतिः प्रदेव्येत सोनृता अच्छावीरन्नर्यं पङ्क्तिरादसं देवा यज्ञं नायन्तु नः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखस्य शिरोसे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखस्य शिरोसे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखस्य शिरोसे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे 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 अश्वस्य त्वा वृष्णशक्नाधोपयामि देव यजन पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे अश्वस्य त्वा वृष्णशक्नाधोपयामि देव यजन पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे अश्वस्य त्वा वृष्णशक्नाधोपयामि देव यजन पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे 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 ऋजवे त्वा साधवे त्वा सुक्षित्यै त्वा मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे देवस्त्वा सविता मध्वा नक्त्वा पृथिव्या सज्ञस्पृशस्पाहि आर्चरासे शोचरासे तपोसे अनाधृष्टा पुरस्तादग्निराधिपत्य आयुर्मेदाः पुत्रवते दक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजां मेदोः
तुषदा पश्चाद्देवस्य सवितुराधिपत्ये चक्षुर्मेधा आश्रोतिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये रायस्पोषं मेदोः यधृतिरुपरिष्टात् बृहस्पति राधिपत्य ओजो मेधा विश्वाभ्यो मानाष्ट्राभ्यस्पाहि मनोरश्वासि स्वाहा मरुद्भ्यः परिश्रीयस्व देवसज्ञस्पृशस्पाहि माधो माधो मधु दर्भो देवानां पितामातीनां पतिः प्रजानां संदेवो देवेन सवित्रागतसज्ञ सूर्येण रोचते समग्निरग्निना गत संदैवेन सवित्रा सज्ञसूर्येणारोचिष्ट स्वाहा समग्नस्तपसा गत सन्दैव्येन सवित्रा सज्ञसूर्येणारोरुचत धर्ता दिवो विभाति तपसस्पृथिव्याम् भर्ता देवो देवानाममर्त्यस्तपोजाः वाचमस्मेन यच्छद वायुवम् अपश्यं गोपामने पद्यमानमाच पराच पथिभिश्चरन्तम् ससध्वे चेर्सविषो चेर्वसान आवारे वर्ति भुवनेष्वन्तः विश्वासां भुवां पते विश्वस्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्पते सर्वस्य वचसस्पते देवश्रुत्वं देवघर्म देवो देवान् बाह्यत्र प्रावीरणोवान् देववीतये मधुमाधेभ्यां मधुमाधोचेभ्यां हृदय त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा ऊर्ध्वो अध्वरं दिवि देवेषु धेहि पिता नोऽसि पिता नो बोधि नमस्ते अस्तु मामाहिग्गसेः त्वष्ट्रमन्तस्त्वा सपेम पुत्रान् पशोन्मये देह्यरेष्ठाहग् सहपत्या भूयासम् अह केतुना जुषताग् सुज्योतिर्ज्योतिष स्वाहा रात्रिः केतुना जुषताग् सुज्योतिर्ज्योतिष स्वाहा ॐ इन्द्रं அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகி கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ பத்மாவதி தாயாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை செவித்துக் கொண்டுள்ளோம். பத்மாவதி தாயார் இதோ தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு தங்க சிம்மாசனத்திலே கம்பீரமாக வீற்று கொண்டிருக்கிறாள், ஸ்ரீனிவாசனை கரம் பிடிப்பதற்காக. அந்த மங்களகரமான கைங்கரியத்தை நாம் அனைவரும் வீட்டில் இருந்தபடியே ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்துக் கொள்வோம். பக்தர்களே, உலகில் பிறந்த உயிரினங்கள் அனைத்திற்கும் பூமியே ஒரு பெரும் செல்வம்தான்.
இவை பிறந்து வளர்ந்து உண்டு உறங்கி வாழ்ந்து மடிவது இந்த பூமியின் மேல்தான் அல்லவா? ஆகையால் பிராணிகளுக்கு இது ஒரே செல்வமாகிறது. ஆனால் மனிதர்களாகிய நமக்கு பூமி என்பது ஒரு செல்வமாகவும் அதில் கிடைக்கும் பல வகை வளங்கள் என்பது ஒரு செல்வமாகவும் பிரிக்கப்படுகிறது. இதுவே ஸ்ரீதேவி பூதேவியின் இருவேறு வடிவங்கள். பிராணிகள் வேலை செய்து நிதி சேர்த்து அதை செலவு செய்வதில்லை அல்லவா? படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்ற முத்தொழில்களையும் தன் சம்ஸ்காரத்தில் சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் என்கிறோம். जुष्टं गिर्पणसे गिरः इन्द्रम् इत गाथिनः बृहत् इन्द्रम् अर्केभिः अर्किणः इन्द्रम् वाणीः अनूषत गायन्ति त्वा गायत्रिणः अर्चन्ति अर्कम् अर्किणः ब्रह्माणः त्वा शतक्रतविति शतक्रतो उदिति वगंशम् इव येमिरे अगंहो मुच इत्यगंहः मुचे प्रेति भरे मा मनीषाम् ओशिष्ठदावुण्ण इत्योशिष्ठदावुण्णे सुमतिमिति सुमतिम् गृणानाः इदम् इन्द्र प्रतीति हव्यम् गृभाया सत्याः सन्तो यजमानस्य कामाः विवेशायत् मा आधिषणा जजानास्तवै पुरा पार्यात् इन्द्रम् अह्नः अगंहसः यत्रापि परत् यथा आनः नावा इवायान्तम् उभये हवन्ते प्रेति सम्राजमिति सम्राजम् प्रथमम् अध्वराणा अगंहो मुचमित्यगंहः मुचम् वृषभम् यज्ञियानाम् अपाम् नपातम् अश्विना हयन्तम् अस्मिन् नरः इन्द्रियम् धत्तम् ओजः वीति नः इन्द्रामृधः जहि नीचा यच्छा पृतन्यतः अधस्पदमित्यधः पदम् तम् ईं कृधीयः अस्मान् अभिदासतीत्यभिदासति इन्द्र क्षत्रम् अभीति वामम् ओजः अजायथाः वृषभाचर्षणीनाम् अपेति अनुदः जनम् अमित्रयन्तमित्यमित्रायन्तम् उरुम् देवेभ्यः अकुर्णोः उ लोकम् मृगः न भीमः कुचरः गिरिष्ठ इति गिरिस्थाः परावत इति परावतः एति जगाम परस्याः सृकम् सगंशायेति संशाय पविम् इन्द्रातिग्मम् वीति शत्रून् ताढि वीति मृधः नुदस्व वीति शत्रून् वीति मृधः नुद वीति वृत्रस्य हनो इति रुजा वीति मन्युम् इन्द्रभामितः अमित्रस्य अभिदासत इत्यभिदासतः त्रातारम् इन्द्रम् अवितारम् इन्द्रम् हवे हव इति हवे हवे सुहवमिति सुहवम् शूरम् इन्द्रम् हुवे नो शक्रम् पुरुहूतमिति पुरुहूतम् इन्द्रम् स्वस्ति नः मघवेति मघवा धातु इन्द्रः मा ते अस्याम् सहसा वन्निति सहसा वन्ने परिष्टौ अघाय भूमा हरिव इति हरिवः परादा इति परादैत्रायस्व नः अवृकेभिः वरूथैः तव प्रियासः सूरिषु श्यामा अनवः ते रथम् अश्वाय तक्षन् त्वष्टा वज्रम् पुरुहूतेति पुरुहूताद्युमन्तमिति द्युमन्तम् ब्रह्माणः इन्द्रम् वहयन्तः अर्कैः अवर्धयन् अहये हन्त वै ओवृष्णे यत् ते वृषणः अर्कम् अर्चान् इन्द्रग्रावाणः अदितिः सजोषा इति सा जोषाः अनश्वासः ये पवयः रथाः इन्द्रेशिता इति इन्द्र इशिताः अभ्यवर्तन्तेत्यभि अवर्तन्तादस्यून् ॐ पाकयज्ञमिति पाकयज्ञं वै अन्विति आहिताग्नेरित्याहिता अग्नेः पशवः उपेति तिष्ठन्ते इडा खलु वै पाकयज्ञ इति पाकयज्ञः सा एषा अन्तरा प्रयाजानुयाजानिति प्रयाजा अनुयाजान् यजमानस्य लोके अवहितेत्यवहिता आताम् आक्रियमाणामित्या आक्रियमाणाम्
आह्रियमाणायामित्याह्रियमाणायाम् अभीति मन्त्रयेत स्वरूपवर्षवर्ण इति स्वरूपवर्षवर्णे एति हि इति पशवः वै इडा पशून् एव उपेति ह्वयते यज्ञं वै देवाः अदुह्रन् यज्ञः असुरान् अदुहत् ते असुराः यज्ञदुग्धा इति यज्ञादुग्धाः परेति अभवन् यः वै यज्ञस्य दोहं विद्वान् यजते अपीति अन्यं यजमानं दुहे एसा मे सत्या आशीरित्या आशीः अस्या यज्ञस्य भूयात् इति आह एषः वै यज्ञस्य दोहः तेन एव एनं दुहे प्रत्ता वै गौः दुहे प्रत्ता इडा यजमानाय दुहे एते वै इडायै स्तना आह इडा उपहूतेत्युपहूता इति वायुः वत्सः यरिः होता इडाम् उपह्वजेतेत्युपह्वजेत तर्हि यजमानः होतारम् ईक्षमाणः वायुं मनसा ध्यायेत् मात्रे वत्सम् अवसृजति सर्पेण वै यज्ञेन देवाः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् पाकयज्ञेनेति पाकयज्ञेन मनुः अश्राम्यत् सा इडा मनुम् उपावर्ततेत्युपावर्तत ताम् देवासुरा इति देवासुराः वीति अह्वयन्त प्रतीचीं देवाः पराचीम् असुराः सा देवान् उपावर्ततेत्युपावर्तत पशवः वै तत् देवान् अवृणत पशवः असुरान् अजहुः यं कामयेत अपशुः स्यात् इति पराचीम् तस्य इडाम् उपेति ह्वयेत अपशुः एव भवति यं कामयेत पशुमानिति पशुमान् स्यात् इति प्रतीचीं तस्य इडाम् उपेति ह्वयेत पशुमानिति पशुमान् एव भवति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति सः तु वै इडाम् उपेति ह्वयेत यः इडाम् उपहूयेत्युपाहूय आत्मानम् इडायाम् उपह्वजेतेत्युपह्वजेत इति सा नः प्रिया सुप्रतूर्तिरिति सुप्रतूर्तिः मघोनि इति आह इडाम् एव उपहूयेत्युपाहूय आत्मानम् इडायाम् उपह्वजेतेत्युपह्वजेत इति सा नः प्रिया सुप्रतूर्तिरिति सुप्रतूर्तिः मघोनि इति आह इडायाम् उपेति ह्वयते एव्यस्तमिति वि अस्तम् इव वै एतत् यज्ञस्य यत् इडा सामि प्राश्यन्तीति प्राश्यन्ति सामि मार्जयन्ते एतत् प्रतीति वै असुराणां यज्ञः वीति अच्छिद्यत ब्रह्मणा देवाः समिति अदधुः बृहस्पतिः तनुताम् इमं नः इति आह ब्रह्मा वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणा एव यज्ञं समिति दधाति विच्छिन्नमिति विच्छिन्नं यज्ञं समिति इमं दधातु इति आह सन्तत्या इति सन्तत्यै विश्वे देवाः इह मादयन्ताम् इति आह सन्तत्येति सन्तत्या एव यज्ञं देवेभ्यः अन्विति दिशति यां वै மகாலட்சுமியை நமோ நமஹ. பக்தர்களே, பத்மாவதி தாயாரனுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே நாம் இப்போது சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த மாங்கல்யத்தை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு இதோ அந்த மாங்கல்யத்திற்கு மங்களகரமான நறுமணமிக்க பொருட்களால் பூஜை செய்த பின்பு பத்மாவதி தாயாருக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி இப்பொழுது சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். இன்னும் சற்று நேரத்திலே மாங்கல்ய தாரண கைங்கரியத்தை செவிப்போம், வாருங்கள். இந்த இடத்தில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் உள்ளே பூமாதேவி இருக்கிறாளாம். இப்படி ஸ்ரீதேவி பூதேவி இருவரும் ஒரே வடிவில் மகாலட்சுமியாக இருந்தாலும் பின்பு கால கிராமத்தில் ஐஸ்வர்ய ரூபிணியான ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை
வேறுபாடற்ற அதே நிலையில் வைத்துக்கொண்டு அதனுள் இருக்கும் பூமாதேவியை மட்டும் பிரித்து விஷ்ணுவின் மற்றொரு பத்னியாக காட்டும் பழக்கம் உண்டானதாம். அதனால்தான் பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தின்படி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் அர்ச்சா மூர்த்தங்களின் இரு புறமும் ஸ்ரீதேவி பூதேவியர்களை தனித்தனியாக வைத்து வழிபடும் வழக்கமும் உண்டானது. இப்படி ஸ்ரீதேவி பூதேவி இருவரும் ஒருவரே என்பதற்கான ஆதாரங்கள் குணரத்ன கோசம், ஸ்ரீ சூக்தம் போன்ற நூல்களிலும், ஏன் வேதாந்த தேசிகர் அருளிய ஸ்ரீஸ்துதி பூஸ்துதி போன்ற கிரந்தங்களிலும் காண்பிக்கின்றன. விஷ்ணு பத்னியும் மகம் தேவீம் மாதவீம் மாதவ பிரியாம் என்றும், லக்ஷ்மி பிரிய சகீம் தேவீம் நாமம் எச்சுத்த வல்லபாம் என்றும், ஹரி சச்சதே லக்ஷ்மீஷ்ட பத்னியை என்றும் வேத நூல்களில் சில வாக்கியங்களும் காணப்படுகிறதல்லவா? இது போல வரும் இடங்களில் எல்லாம் ஸ்ரீதேவி பூதேவி இருவரும் ஒருவரே, அது ஸ்ரீதேவி பூதேவி இருவரும் சேர்ந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே என்று கற்பித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே மகான்களின் கருத்தாகும். எனவே பக்த கோடிகள் இதே பாவனையில் தனித்தனியே உள்ள ஸ்தலங்களில் தனித்தனியாகவும் இருவரும் ஒன்றாகவே உள்ள சில தலங்களுக்கு செல்லும் போது அங்கு ஸ்ரீதேவி பூதேவி रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని. బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును. బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును. సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో, సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో. మోస
చదువరో టక్కక జేగట వేసి తప్పకుండాను. यज्ञम् एव तत् महयति अथो इति देवत्रेति देवात्र एव दत्तं कुरुते आत्मन् पशून् रमयते ददतः मे एमाक्षायि इति आह अक्षितिम् एव उपेति एति कुर्वतः मे एमा उपेति दसत् इति आह भूमानम् एव उपेति एति सग्श्रव इति संश्रवाः सौवर्चनसः तुमिञ्जम् औपोदितिमित्यौप उदितिम् उवाच यत् सत्रिणा होता अभूः काम इडा उपेति अह्वथाः इति ताम् उपेति अह्वे इति ह उवाच या प्राणेनेति प्रा अनेन देवान् दाधार व्यानेनेति वि अनेन मनुष्यान् अपानेनेत्यपा अनेन पितॄन् इति छिनत्ति सा न छिनत्ति इति छिनत्ति इति ह उवाच शरीरं वै अस्यै तत् उपेति अह्वथाः इति ह उवाच गौः वै अस्यै शरीरं गां वातौ तत् परीति अवदतां या यज्ञे दीयते सा प्राणेनेति प्रा अनेन देवान् दाधार यया मनुष्याः जीवन्ति सा व्यानेनेति वि अनेन मनुष्यान् यां पितृभ्य इति पितृभ्यः घ्नन्ति सा अपानेनेत्यपा अनेन पितॄन् यः एवं वेद पशुमानिति पशुमान् भवति अथ वै ताम् उपेति अह्वे इति ह उवाच या प्रजा इति प्राजाः प्रभवन्तीरिति प्रभवन्तीः प्रतीति आभवतीत्या आभवति इति अन्नं वै अस्यै तत् उपेति अह्वथाः इति ह उवाच ओषधयः वै अस्याः अन्नम् ओषधयः वै प्रजा इति प्राजाः प्रभवन्तीरिति प्रभवन्तीः प्रति एति भवन्ति यः
एवं वेद अन्नाद इत्यन्ना अदः भवति अथ वै ताम् उपेति अह्वे इति ह उवाच या प्रजा इति प्राजाः परा भवन्तीरिति परा भवन्तीः अनुगृह्णातीत्यनुगृह्णाति प्रतीति आभवन्तीरित्या भवन्तीः गृह्णाति इति प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां वै अस्यै एतत् उपेति अक्वथः इति ह उवाच इयम् सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधा वादिगन्धि सप्तयोनिरापृणस्वा घृतेन स्वाहा रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागं सुरे सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ये च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि అలమేలు మంగవు నిన్నాతడి నియరగడ అలమేలు మంగవు నిన్నాతడి నియరగడ ఎలమిని ఎడకాతడు ఇచ్చకుడే కదవే అలమేలు మంగవు నిన్నాతడి నియరగడ ఎలమిని ఎడకాతడు ఇచ్చకుడే కదవే తప్పక చూచినవాడు తగులకేలమానినే కప్పురమిచ్చినవాడు కై కొనడటే అప్పక చూచినవాడు తగులకేలమానినే కప్పురమిచ్చినవాడు కై కొనడటే చెప్పి పంపినట్టివాడు చేరి ఇంటికి రాడటే చెప్పి పంపినట్టివాడు చేరి ఇంటికి రాడటే ఇప్పుడింత విరహాన నేల పోరలేవే చెప్పి పంపినట్టివాడు చేరి ఇంటికి రాడటే ఇప్పుడింత విరహాన నేల పోరలేవే అలమేలు మంగవు అలమేలు మంగవు అలమేలు మంగవు నిన్నాతడి నియరగడ ఎలమిని ఎడకాతడు ఇచ్చకుడే
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ